fine and fit and studying well for the exam. Today you are going to have a grammar lesson number 19 and I think 20. Yes, you'll be learning a conjunction and with that you are going to learn punctuation. So let me share the PPT with you. This is lesson number 19, conjunction. The previous day you have learned adverbs and before you have learned preposition. So now today you learn conjunction and after that you are going to learn punctuation. So let's see. I'm going to share the slideshow. What is a conjunction? What is a conjunction? A conjunction is a word which is used to join words or sentences together. So what is a conjunction? Conjunction is a word, ऐसा कोई word है which is to join words or sentences together. मतलब ये जो conjunction word है ये क्या करते हैं? ये join करते हैं words को और sentence को एक साथ में. Examples of conjunction: and, but, if, or, because, since, while, so, etc. So these are the examples. These are the words, conjunction words. Yes, and, but, if, or, because, since, while, so, etc. So here you have to learn the definition of conjunction. What is a conjunction? You have to learn it by heart. Now we'll move to the next one. Use of and but. So and is conjunction. What is how we use it? And join words and sentences that are similar. So if the words are similar, means the meaning is same and sentences are also same meaning, then mostly we put and conjunction. Examples: I called Ravi and we talked for 1 hour. So it is mostly the similar purpose, same thing. I called him and we talked for 1 hour. Beer, Nihal and Ravi are very good friends. So here all of them it is all same. They are friends. So Beer, Nihal and Ravi are very good friends. So here you are putting the conjunction and over there and you are adding the words, yes, together. But now we learn the conjunction but, how we use it. But join words and sentences that are opposite to each other in nature. So here but conjunction when you use when it is opposite, not same. And we use when it is similar, but when you use but, it is opposite in nature. Example: I also called Niharika, but she wasn't home. मतलब मैं उनको बुलाया था, उनको भी बुलाया था, but she wasn't home, but वो घर पे नहीं थे, घर पे नहीं थे. She is not pretty but she is intelligent. वो प्रीति नहीं था, देखने में अच्छा नहीं था, but she is intelligent, but उनके वो बुद्धि है उसके पास. तो यहाँ पे she is not pretty but she is intelligent, it is opposite. So when there is opposite thing, तो वहाँ पे हम but यूज करते हैं. yes, और जब सिमिलर होता है तो हम कंजंक्शन एट यूज करते हैं. तो हियर हमने सीखा है यूज ऑफ एंड बट, कैसे हम एंड बट को यूज करते हैं. सो नाउ वी लर्न यूज ऑफ और कंजंक्शन. नाउ द और इज आल्सो कंजंक्शन. हाउ वी यूज दिस कंजंक्शन? और join words and sentences that show a choice. मतलब अगर चॉइस करना है, दो चीज में से कोई एक चॉइस करना है तो यू हैव टू यूज और. चॉइस की ये जब आता है तो हम और यूज करते हैं. एग्जाम्पल: डू यू वांट चॉकलेट और वैनिला? मतलब ये जो है आइसक्रीम बोल रहे हैं, सो डू यू वांट चॉकलेट आइसक्रीम और वैनिला आइसक्रीम? तो यहाँ पे दोनों में से आपको एक ही चॉइस करना है, दो नहीं है, तब तो हम और यूज कर रहे हैं, और कंजंक्शन आ रहा है. लीव फ्री और डाई, छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, और डाई आप मतलब लीव फ्री मतलब आप फ्री फ्री रहो और डाई मरो. तो यहाँ पे
और जो है दोनों में से एक है, आपको फ्री रहना है कि आपको मरना है, तो ये चूज करना है आपको। और आपको चॉकलेट में से कौन सा चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए और वेनिला आइसक्रीम चाहिए। तो और हम और कंजंक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें चॉइस करना पड़ता है। सो नाउ यू लर्न एंड, बट एंड और कंजंक्शन। Words like because, since, if, when, and while are also conjunctions. So here you see because, since, if, when, and while. These are also conjunction. Means how we'll use this thing. Example: he is angry with me because I opened the letter. तो यहाँ पे टू एक्सप्रेस कॉज और रीजन, तो यहाँ पे जो बिकॉज हमने यूज किया है जब हमें कारण दिखाना पड़ता है, रीजन दिखाना पड़ता है, तब हम बिकॉज यूज करते हैं। ही इज एंग्री विथ मी बिकॉज आई ओपन हिज लेटर। तो वो गुस्सा क्यों है उसको, क्योंकि मैंने उनका जो लेटर है वो खोला है, तो उसकी वजह से वो गुस्सा है, तो कुछ कारण होता है, तो वहाँ पे हम बिकॉज कंजंक्शन यूज करते हैं। They are rather expensive since they are quite hard to find to express a reason. तो they are rather expensive मतलब वो expensive है, वो दामी है ज़्यादा। Since they are quite hard to find, expensive है इसलिए difficult to get them। हाँ, मतलब cheap होते तो बहुत से लोग लेते हैं तो easy होता है find करना, difficult expensive है तो हर जगह पे आपको मिलते नहीं है। तो यहाँ पे they are rather expensive since they are quite hard to find. तो टू एक्सप्रेस अ रीजन, ये भी एक रीजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे since यूज कर रहा हूँ। इफ ही डजंट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लूज हिज जॉब। तो यहाँ पे इफ जो है हम यूज कर रहे हैं, इफ कंजंक्शन, ये यहाँ पे क्या, वो अगर उसका एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उसको जॉब मिलने में मुश्किल होगा। ही विल लूज हिज जॉब मतलब है ना, उनका जॉब जो है वो नहीं रहेगा। जब कोई आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका जॉब जो है वो आप उसको आप नहीं रख पाओगे, मतलब वो आप जॉब से छूट जाओगे। तो ये मीनिंग यहाँ पे है, तो ये कारण दिख रहा है। इफ जो है, इफ ये भी रीजन, ये तो टू एक्सप्रेस ए कंडीशन। कंडीशन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी ये एक कंडीशन है। तो what we learn over here, because, since, if, how we use, okay, how we use in conjunction. Okay, let's see, we'll go to the another one where we say when. She was having dinner when I reached home. तो when भी conjunction है, how we use to express two action at the same time, मतलब दोनों action जब एक साथ में होता है तो हम यहाँ पे when यूज कर रहा है। She was having dinner when I reached home, मतलब जब खाना खा रहे थे तब हम घर आए, उसी टाइम हम घर आए। It was raining while I was watching a movie. तो ये भी दो, टू एक्सप्रेस टू लॉन्ग एक्शन एट द सेम टाइम, ये भी ऐसा ही है। वाइल जो है हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे व्हेन, और ये वाइल तो एक्शन थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ इट वाज रेनिंग, बारिश हो रहे थे, व्हाइल आई वाज वाचिंग मूवी, तो जब हम मूवी देख रहे थे तब बारिश हो रहे थे। तो टू एक्सप्रेस टू लॉन्ग एक्शन एट द सेम टाइम, तो व्हेन एंड व्हाइल हम कैसे यूज करें वो दिखाए। Now use of so conjunction, हम so कैसे यूज कर रहे हैं। so is also conjunction, it is used to express a reason। so जो conjunction है वो reason, जैसे कि because में reason होता है, so में भी reason होता है। there was no electricity so I did not do my homework। आपने मैंने क्यों homework नहीं किया, यहाँ पे हम because नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैंने होमवर्क नहीं कर, एक कॉन्सिक्वेंस हो गया। हाँ, तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी सो आई डिड नॉट डू माय होमवर्क, इसके वजह से मैंने होमवर्क कर नहीं पाया। आई एम लेट सो आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मुझे देर हो गया सो आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, इसलिए मैंने पार्टी में गए नहीं। तो अभी हम सीखा है क्या, कंजंक्शन सो हाउ वी यूज इट।
ओके, तो अभी हम लेसन नंबर 19 कंजंक्शन के बारे में आप सीख गया। नाउ अभी लेसन नंबर 20 जो है पंक्चुएशन, और आप कैपिटल लेटर कैसे यूज करते हैं, पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, तो ये आप सीखोगे। पंक्चुएशन मार्क, द प्रिंसिपल मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर, प्रिंसिपल मतलब मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर, क्या क्या पंक्चुएशन मार्क होता है, फुल स्टॉप, ऐसा फुल स्टॉप होता है, कॉमा, एक कॉमा है, ए साइन ऑफ कॉमा, सेमी कोलोन, इसको सेमी कोलोन करते हैं, कॉमा उसके ऊपर डॉट होता है तो सेमी कोलोन हो जाता है, कोलोन जब टू डॉट्स होता है एक कोलोन है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क जब थकता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मीन्स जब क्वेश्चन मार्क रहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ए एक्सक्लेमेशन, ए आई एंड डॉट नीचे रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क, ये डबल डबल ये जो है स्टार्टिंग एंड एंड ये करना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा एंड कोटेशन मार्क ऐसे सिंबल है, एंड एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ऐसे ऊपर होता है, कॉमा जैसा नीचे होता है, एपोस्ट्रोफी ऊपर होता है ऐसा, तो ये प्रिंसिपल मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, तो ये मतलब मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में ये सब मार्क्स आपको यूज करना पड़ता है। तो we'll learn in details all these things. The full stop or period of represent the longest pause, for example. So full stop हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब longest pause होता है, yes, और जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको फुल स्टॉप यूज करते हैं। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, द लॉन्गेस्ट पॉज वो फुल स्टॉप होता है। शट द डोर, सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लॉन्गेस्ट पॉज है। द कॉमा मार्क्स आर द शॉर्टेस्ट पॉज, कॉमा ये जो फुल स्टॉप जो होता है लॉन्गेस्ट पॉज, एज कॉमा जो होता है शॉर्टेस्ट पॉज होता है। आई टेल यू सी कॉमा मैडम कॉमा आई हैव रेड इट फुल स्टॉप, सो यहाँ पे फुल स्टॉप जो है लॉन्गेस्ट पॉज है, कॉमा जो है शॉर्टेस्ट। When you are ready, we shall start the presentation. So when you are ready, यहाँ पे एक कॉमा दिया है, शॉर्टेस्ट पॉज, एंड देन आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट पॉज में आपको फुल स्टॉप लगाना है। Now the semicolon represent a pause greater that indicate by the comma. तो सेमीकोलन जब होता है, एक सेमीकोलन है इस मतलब कॉमा ऊपर जो डॉट है, तो जब गेटर होता है, ये जो है गेटर देन दैट इंडिकेट बाय द कॉमा, मतलब कॉमा में हम जो जो इंडिकेट करते हैं वो उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, गेटर होना चाहिए, तब हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। आई केम, आई सॉ, आई वॉन, यस ऐसा है। आई सिंग, आई लव, आई रन फॉर जॉय, तो यहाँ पे ऐसा अगर होगा तो हम वहाँ पे सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। कोलोन, द कोलोन रिप्रेजेंट अ पॉज की लॉन्गर देन द इंडिकेट बाय द सेमीकोलन, तो सेमीकोलन जो होता है सेमीकोलन से थोड़ा लॉन्गर पॉज होता है, लॉन्गर देन द सेमीकोलन, तब वहाँ पे हम कोलोन लगाते हैं। द 3 होली बुक्स दैट आई रीड आर, तो यहाँ पे आप कॉमा नहीं लगाएंगे, यह कोलोन लगाएंगे, यस, और सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, सेमीकोलन उससे छोटा होता है। तो द 3 होली बुक्स दैट आई रीड आर और आई रेड आर, मतलब हम तीनों होली बुक जो पढ़ा है वो है क्या, द गीता एक कॉमा, द बाइबल एंड द कुरान, तो ये 3 बुक, तो कॉमा जो है भाई ये शॉर्टेस्ट पॉज होता है, अरे फुल स्टॉप हो गया। तो ना अभी सेमीकोलन और कोलन के बारे में सीखा है, फिर हमने कॉमा और फुल स्टॉप के बारे में सीखा है। नाउ इंट्रोगेशन मीन्स इंटरोगेशन, यस, इंटरोगेशन एंड एक्सक्लेमेशन यू विल लर्न। द मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन इज यूज टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इंटरोगेशन यूज करते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, आप पूछ रहे हैं किसी को क्या हो गया आपको, क्यों ऐसा कर रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। व्हाई वेर यू लेट टू क्लास, आप क्लास में देर क्यों है, व्हाई वेर यू लेट टू क्लास, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है तो ये है इंटरोगेशन, ये तो इंटरोगेशन मार्क मीन्स क्वेश्चन मार्क, you have to put.
The mark of exclamation is used after interjection, exclamatory pauses and exclamatory sentences. तो exclamation आपको कहाँ यूज करना पड़ता है? इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, और एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जब आप इंटरजेक्शन मतलब कि जब आप कोई इमोशन होता है, और आप सरप्राइज होता है, तो ये सब इंटरजेक्शन यूज करना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी भी सेम होता है, ऐसा ही है। तो जैसे कि अलास आई कुडंट से गुड बाय, अरे आई मतलब आप भूल गया गुड बाय बोलने में, तो सॉरी अलास। हाँ, ब्रेवो वेल प्ले मतलब कोई अगर अच्छा खेल रहा है तो आप बोले ब्रेवो वेल प्ले, बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा। तो ये है ऐसा, ये जो है ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब एक लाइन आई जैसा कि लिखने के बाद नीचे डॉट देना है, लाइन और नीचे डॉट, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। use of punctuation mark, inverted comma. Now we learn inverted comma or quotation marks. Copies. Inverted commas or quotation marks are used to mark the exact word of a speaker or a quotation. मतलब जो कौन स्पीकर जब कुछ बोलते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते उसको, हाँ, जैसे कि वो है क्वोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। तो आप इन्वर्टेड कॉमा में वो स्पीकर जो कह रहे हैं वो रहेगा, तो स्पीकर का जो एग्जैक्ट मतलब जो बोला है वही रहेगा, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते और कुछ काट नहीं सकता। तो है इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क, उसमें हम यूज होता है कि जैसे कि सी सेड आई एम गिल्टी, उन्होंने क्या बोला है, सी सेड कॉमा आई एम गिल्टी, ये जो है ये है कोटेशन मार्क। यस, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क में जो कहा है स्पीकर ने जो कहा है वही रहेगा, तो ये कोटेशन मार्क वो कोड होता है। ही सेड आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्होंने क्या बोला है, आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कहा है वो रहेगा, तो ये जो है ये कोटेशन मार्क है। और इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ये कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। The apostrophe is used. Now apostrophe you will learn. The apostrophe is used to show omission of a letter or letters. Apostrophe कहाँ पे यूज होता है? To show omission मतलब आप जब हम उसको निकाल देता है, देख नहीं पाता है, omission of a letter or letters. To for example don't, DON, यहाँ पे apostrophe T, यहाँ पे वो था, वो को हम omission कर दिया, वो नहीं है अभी, हाँ, तो don't यहाँ पे हम apostrophe लगाए। can't, it is a short form, इसे contraction कहते हैं इसको। cannot, cannot को हम इसको short में लिख दिया, can not। then haven't means have not, yes, have not, so have and यहाँ पे वो नहीं है, short कर दिया। I have, see I HAVE, so यहाँ पे HA is not here, so omit कर दिया उसको, omission, etc. So this is apostrophes. Apostrophes जैसे कि कॉमा नीचे होता है, apostrophes ऊपर होता है, ऐसा। To show the possessive case, मतलब the boy's car, जब कुछ बिलोंगिंग होता है, किसी का चीज होता है, जब हम कहते हैं तो वो उसमें भी हम apostrophes यूज करते हैं। द बॉयज कार मतलब वो कार किसका है, वो बॉयज का, बॉयज का है, बॉयज का है। द वुमेन्स बैग, एक्सेप्ट, ये बैग किसका है, वुमेन का है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा करके अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो जब वो पोजीशन होता है उनका वो चीज हो जाता है तो हम वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ कैपिटल लेटर, ए कैपिटल लेटर इज यूज टू बिगिन ए सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल गॉड इज ग्रेट, तो कैपिटल लेटर जब शुरू स्टार्टिंग लेटर में यूज होता है। वर्क इज वर्कशीट, डब्ल्यू कैपिटल लेटर। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ ए पोएम, जब पोएम का कोई पहला लाइन शुरू होता है वहाँ पे आप कैपिटल लेटर। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, सो ये लाइन है पोएम का लाइन, बिगिनिंग लेटर में कैपिटल होता है। एज इज फुल ऑफ केयर्स, तो ये जो है कैपिटल लेटर ये होता है। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ देम, तो यहाँ पे और एक क्या है, जब प्रॉपर नाउन होता है और एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ देम, तब हम यहाँ पे कैपिटल, फॉर एग्जांपल दिसंबर, सैटरडे, मुंबई,
the Germans, the what is Chinese trope, the English language, ये सब जो होता है ये सब proper noun है तो वहाँ पे हम use करते हैं. For all nouns and pronouns which indicate God, ओ गॉड, thou art merciful. So यहाँ पे जब गॉड को हम इंडिकेट करते हैं, ईश्वर के बारे में कुछ कहते हैं तो वहाँ पे हम कैपिटल मतलब कैपिटल वर्ड यूज करते हैं. ओ गॉड, यहाँ पे ओ कैपिटल, जी का गॉड भी कैपिटल होता है. कभी कभी मैंने देखा आप सब गॉड को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, नहीं कैपिटल में लिखना है. दाव मतलब यहाँ पे दाव मीन्स यू आर मर्सीफुल, सो दाव he has to be capital letter. To write the pronouns I and the interjection O, यहाँ पे कैपिटल होता है. I am going to the market, so I capital letter. Oh, what a fool I have been, so यहाँ पे O जो है ये कैपिटल होना चाहिए. Okay, thank you students. So I'm going to now class subject is over. I hope you have you will understand when you see the videos. See the several times and read your lesson, you will understand. So now I would like to close this.